ধন্যবাদ জানাইছো। আমার আন এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি হিন মজদুৰ সভাৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ সভাপতি অজয় দত্ত ডাঙৰীয়া, যিগৰাকী ব্যক্তি NFLA মজদুৰ ইউনিয়নৰ লগত সদায় নিজকে জড়িত কৰি ৰাখে, যিগৰাকী ব্যক্তি অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত, বিভিন্ন সামাজিক কামৰ সৈতে জড়িত, সেইগৰাকী ব্যক্তিও আজি আমাৰ মাজলৈ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাক ধন্য মানিছে। আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আপোনালোকক এতিয়া পৰিচয় কৰি দিব ওলাইছোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ এই ৰাখালদাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেইগৰাকী ব্যক্তি দাদুল চলিহাদেৱ। তেখেতক আজি আমি ইয়ালৈ মাতি আনিছিলোঁ। তেখেতক আপোনালোকৰ ওচৰত পৰিচয় কৰি দিব কৈছোঁ। এয়া তেখেত দাদুল চলিহা। দাদুল চলিহাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই আমাৰ নেকিবুৰ জামানক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে যিসকল ইউনিয়নৰ বিষয়ববীয়া, যিসকলে আজি কেইবাদিনো ধৰি অহৰ্নিশে ইয়াতে কাম কৰি আমাৰ এই ৰাখালদাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা, শ্বহীদ বেদীৰ কাম কৰা, তেখেতসকলক যদি আমি শলাগ নলওঁ তেনেহ'লে আমি ভুল কৰা হ'ব। সেইসকল ব্যক্তি হ'ল মালিগাঁও শাখাৰ কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ কুমাৰ বৰ্মন। মই তেখেতক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰাইছোঁ আৰু মালিগাঁও শাখাক অনুৰোধ জনাম তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ। গোপাল দাস না গোপাল দাস আন এগৰাকী আমাৰ সদস্য মালিগাঁও শাখাৰ CEC মেম্বাৰ গৌতম দাস, তেখেতকো মই ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এওঁলোক দুজনৰ লগতে লাগি আছিল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ উপসভাপতি নেকিবুৰ জামান। মই তেওঁকো মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিজে নিজে পিন্ধিবা নেকি? এই কাৰ্যত যথেষ্টখিনি অৱদান আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ বৰা ডাঙৰীয়া। তেখেতকো মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহ মই আমাৰ উপসভাপতি নেকিবুৰ জামানক আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ কমৰেড দিলীপ দা। এতিয়া মই NFLAৰ চিফ পাৰ্চনেল অফিচাৰ, প্ৰিন্সিপাল চিফ পাৰ্চনেল অফিচাৰ শ্ৰীযুত চন্দ্ৰজিৎ শইকীয়া ছাৰক তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰ। सभी को नमस्कार। प्रेसिडेंट NFLA मजदूर यूनियन श्री दिलीप चक्रवर्ती जी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन श्री शिव कुमार मिश्र जी, जनरल सेक्रेटरी NF रेलवे मजदूर यूनियन श्री आशीष विश्वास जी, श्री अजय दत्त जी, the President of Hind Mazdoor Sabha Assam,
who is a very renowned person here, everybody knows. Sri Piyush Chakraborty ji, Zonal Secretary, All India Railways Federation. Sri Dadul Choliha, the sculptor of the statue, which has been unveiled today by Sri Shiv Kubal Mishra ji. Well, at the very beginning, I must pay once again my homage to Sri Rakhal Das Gupta ji, and at the same time, I must congratulate all those involved with this very noble and great initiative to preserve the memory of Rakhalda in this particular manner. Of course, Rakhalda's memory will always remain, even otherwise, but this is a great way to honor him. The other day, the General Manager NF Railway Sri Anshul Gupta ji, myself and some other principal heads of departments also went to Bongaigaon, where of course Sri Asif Biswaji and other union office bearers were also there for the opening of a memorial hall, Rakhal Das Gupta Memorial Hall, which has been constructed by under the aegis of Rakhal Das Gupta Foundation, where not only railway people but even people from outside are involved, which is another very good effort. And I also told there that hopefully they will involve themselves in various socio-economic activities, because Rakhal Das Gupta's area was not just limited to railwaymen, but it permeated to all layers of society. So this kind of activity, like installing a statue, would always, present generation will definitely remember him even otherwise, but the future generation, for them it will be an inspiration. Once somebody says this, obviously the curiosity will be there amongst our new generation to know about this great personality, what he did, not only for the Mazdoor Union members, but for railwaymen in general, and not only for railwaymen in general, but for the people in general and for the nation in general. That is why it is, I think, very, very important. Well, I remember that the other day I attended a meeting of the Pensioners Association. Kanjilal Babu is here. It is just across the road. There also I told that we should always try to preserve the experience which has been gathered by senior people, because experience doesn't come overnight. The experience which was gathered by Sri Rakhalda was the result of so many decades of his toil for uplift of the downtrodden. So that should be preserved for the future generation. In fact, I always had this in mind, and I sounded this to my father-in-law also, who started a magazine for the senior citizens. I hope something will be done in that direction also. I don't know whether Rakhalda wrote anything, any sort of autobiography or anything. Did he write? I maybe not, but he must have left some notes and all. I request the Mazdoor Union people to write a biography of Sri Rakhal Das Gupta ji, which will always be something to treasure, something to inspire the future generation, and inspire the future generation for doing something not only for themselves but for the society. Well, we must, there is no need to tell anything much about Rakhalda. Well, I told in the Bongaigaon meeting that Rakhalda, I came to know that he became the General Secretary of NFRMU in 1988. And I joined the railways as a probationer in 1989, and on a working post in 1991. He knows me, I was
first posted as Assistant Personnel Officer, Guwahati Sub-Division and the Lumping Division. So that means my career started a bit late, when his career as a leader of the entire NF Railway Zone started in the form of General Secretary. Of course, after that, due to his activities, his positiveness, his honesty, his integrity, and all the qualities which he possessed, he rose to the level of All India Railways Federation's president, which is a huge achievement, and that is a matter of pride for all those in serving in NF Railway and the people in this part of the country. And the only thing I would say that I always keep an open mind towards the unions, because I do believe that I have in fact found that unions, whenever they come with some grievances, most of the time it is genuine grievances. Sometimes some people come with not so genuine grievances. That again maybe as a result of their misconceptions or not knowing the rules properly, and mostly it is because of that. With ulterior motives, perhaps none, or if at all very few come. And whenever they come with a genuine grievance, I always feel that in any case, in the first place, it was the administration's duty to see that these malpractices do not occur at all. So if they have pointed out something, that is good for the administration, because the unions are ears and eyes of the administration. In fact, that is why railways have such an organized system, and railways, such a huge organization, is still working so well compared to other organizations, be it in the government sector or the public sector. And about Rakhalda particularly, I would say that I perhaps never came across any case where he came with a non-genuine request. And he always tried his best to maintain this. And a true leader is one who can communicate very well with the top leadership and also the bottommost grassroots worker, which quality he had. That is why he is a leader. And in modern times, not only in trade union leadership, but in management also, the old feudal system no longer works. One has to communicate with people at different levels, then only you can be successful, because there is always something to learn from higher ups and even the people lower down. Thank you once again, everybody, for calling me here and giving me this opportunity to be a part of this momentous occasion. And I must thank Sri Sikpalji also, because we all are from here, but he has traveled all the way from Delhi to be a part of this big moment. And thank you all. Thank you. চন্দ্ৰজিৎ শইকীয়া ছাৰলৈ NFL মজুৰিৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এতিয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে NF Railway Pensioners Association-ৰ প্ৰতিনিধি প্ৰিয়লাল দেৱনাথ, তেখেতক সন্মুখলৈ আহিব জনাইছোঁ। প্ৰিয়লাল দেৱনাথ, আপুনি সন্মুখলৈ আহক। তেখেতক আমি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মালিকা শাখাৰ কমৰেডক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। NF Railway Pensioners Association-ৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী শক্তিমাই কাঞ্জিলাল ডাঙৰীয়া, তেখেতক সন্মুখলৈ আহিব অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেত অহা নাই। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ADN পাণ্ডু তীৰ্থ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি ফুলাম গামোচাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মালিকা শাখাৰ সভাপতি কমৰেড ৰাজীৱ বৰাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।
বহা জায়গাত দি দে গুচি গ'ল নেকি গুচি গ'ল নেকি দি দে এডিএন পাণ্ডু তীৰ্থ শৰ্মা আছে নে নাই আছে সমবেত সংগীতিৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম তেতিয়া ৰৈ গৈছিলে তেখেত হৈছে দীপক নাথ তেখেতক আমি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই মালিকা সভাৰ কমৰেডক মই জনাইছোঁ অগষ্ট পিনাই দিয়া মাতিছোঁতো নাই আৰে মই মইতো মাতি নহয় নহয়তো দাদা হয় তেখেতৰ আপোনালোকে কনফিউজ কৰি আছে এতিয়া আমি মোৰ সভালৈ আকৌ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হিন্দ মজদুৰ সভাৰ সভাপতি কমৰেড অজয় দত্ত ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ মই জনাইছোঁ কমৰেড অজয় দত্ত নমস্কাৰ আজিৰ এই মহতি সভাৰ সভাপতি আমাৰ অতি মৰমৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ দিলীপ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় নেতা এটা সময়ত য'ত অমৰমল পুৰোহিতজী চৌবেজী ৰাখালদা নিচিনা মানুহ উপস্থিত আছিলে এতিয়া এজনেই গোটেই তিনিজনৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে আমাৰ মিশ্ৰজী শিৱ কুমাৰ মিশ্ৰজী আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট সাধাৰণ সম্পাদক আশীষ বিশ্বাস ডাঙৰীয়া আমাৰ আজি বিশেষ অতিথি প্ৰধান অতিথি CPO প্ৰিন্সিপাল CPO চন্দ্ৰজিৎ শইকীয়া দেৱ তেওঁৰ আৰু এটা চিনাকি আছে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে চিনাকি আমাৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে বহুতেই নাজানে তেখেত এজন বৰণ্য স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া বিধায়ক আছিলে তেখেতৰ সুপুত্ৰ আমাৰ আছে জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱেজ ফেডাৰেশ্যন পীযুষ চক্ৰৱৰ্তী দেৱ আমাৰ আৰ্কিটেক্ট যিটো মূৰ্তিৰ স্কাল্পচাৰ যোনে দুলুল চাৰিহা দেৱ মনোৰঞ্জন চৰকাৰ দা মোৰ সন্মুখত উপবিষ্ট ৰাখালদাৰ অনুৰাগী আৰু ভাতৃস্বৰূপ ভগ্নীস্বৰূপ এনেধৰণে মজুৰিদানৰ সংগ্ৰামী ভাই ভনীসকল সকলোলৈ জনাইছোঁ নমস্কাৰ আৰু আপোনালোকৰ লগতে একেলগতে সেইগৰাকী মানুহক প্ৰণাম জনাইছোঁ ত্যাগ সাহস আৰু কৰ্মৰ ত্ৰিবেণী সংগম আমাৰ সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধাৰ নেতা কিন্তু জন্মায় নেতা বনোৱা নাযায় এ লিজেণ্ডাৰী ফিগাৰ লিজেণ্ডাৰী লিডাৰ ৰাখালদাৰ এই 90তম জন্মদিৱসত তেওঁৰ যিটো মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল এই মূৰ্তি লৈ আৰু এই আত্মালৈ মোৰ সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ স্বামী বিবেকানন্দ ভাৰত ৰত্নৰ প্ৰতীক স্বামী বিবেকানন্দ এষাৰ কথা কৈ গৈছিলে those who live for others they live forever others are living a dead man's life তাৰ প্ৰকৃষ্ট প্ৰমাণ ৰাখালদা আৰু আজি তাৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ যি প্ৰাৰ্থই জীৱন দিয়ে শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থৰ জীৱন দিয়ে তেওঁ এগৰাকী মহান আদৰ্শ আমাৰ জীৱন্ত আদৰ্শ আৰু এই আদৰ্শৰ প্ৰতি আপোনালোকে যি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ প্ৰতি জনাইছোঁ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা ৰাখালদা এজন বৰেণ্য নেতা কমপ্লিট ট্ৰেডনিষ্ট কৰ্মত কঠোৰ হৃদয়ত কোমল প্ৰতিগৰাকী সদস্যা NFLA মজুৰিয়ান তথা অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱে ফেডাৰেশ্যনক অন্ততঃ আমাৰ NFLA মজুৰিয়ানৰ সকলো সদস্যক তেওঁ নিজে নাম ধৰি মাতিব পাৰিছিল জানিছিল চিনিছিলে এই ধৰণৰ নেতা পাবলৈ নাই আৰু এটা মনত পৰি যায় এ পলিটিচিয়ান থিংকছ ফৰ দ্য নেক্সট ইলেকশ্যন বাট এ ষ্টেটছমেন
things for the next generation. আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেলৱে শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি অৰিটো জীৱন দান কৰা এই বৰেণ্য নেতালৈ মোৰ হৃদয়ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰণাম যাচিছোঁ আৰু লগতে এটা অনুৰোধ আপোনালোকক কৰিম আজি মনত পৰিছে বহুত কেইজনৰ কথা তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ কাৰণে আজি আমি এনেফালে মজদুৰ এই অৱস্থাত আছোঁ আজি শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ শ্ৰমিকে অৰ্জন কৰিছে কিন্তু আজি এনেকৈ এটা সময়ত আমি উপনীত হৈছোঁহি যে আমাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ চেষ্টা এটা চলি আছে সেই সময়ত বৰ প্ৰয়োজন ৰাখালদাৰ নিচিনা নেতাৰ বৰ প্ৰয়োজন প্ৰিয়গুপ্তৰ নিচিনা নেতাৰ বৰ প্ৰয়োজন গোলাপ বৰবাৰ নিচিনা নেতাৰ নিৰ্বাণ বৰবাৰ নিচিনা নেতাৰ ইন্দিবৰ কৌৰৰ নিচিনা নেতাৰ বসন্ত ঘোষৰ নিচিনা নেতাৰ আজি বৰ অভাৱ হৈ পৰিছে নেতাৰ আমাৰ সন্মুখত জীৱন্ত আদৰ্শ নাই জ্বলন্ত দেশপ্ৰেম নাই আৰু চূড়ান্ত সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ প্ৰতীক নাই এই তিনিটা ত্যাগৰে তিনিটা বস্তুৰে মই আগতে কৈছোঁ ত্ৰিবেণী সংগম ৰাখালদাৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ মই আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ জনাম আজিৰ দিনত যে আজি ৰাখালদাৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল বৰ ডাঙৰ কাম আপোনালোকে কৰিলে এইটোৱে প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলে কি তাতকৈও বেছি হ'ব যি ৰাখালদাৰ যি আদৰ্শৰ কাৰণে অৰিটো জীৱন দিলে সংসাৰত থাকিও এটা সন্ন্যাসী নিচিনা হৈ থাকিলে এই ৰাখালদাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আপোনালোকে খালি শ্ৰদ্ধা নহয় তেওঁক অনুকৰণ কৰিব লাগিব আজি এই সভাগৃহত এই প্ৰিয়গুপ্ত ভৱনত মানুহ অহা কমি গৈছে আজি ইউনিয়ন অফিচত মানুহ খুব কম যায় এইটো কিন্তু অশনিক সংকট মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি আনন্দৰ দিনত মই এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ এইকাৰণে আজি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাই কেতিয়াই আমি জনাব পাৰিম ৰাখালদালৈ যে তেওঁ যিটো আদৰ্শৰ কাৰণে জীৱন পাঠ কৰিলে গোটেই জীৱনটো দিলে সংসাৰৰ প্ৰতি তেওঁ দৃষ্টি নিদিলে নিজৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে আজিকালি আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ চবে নিজক লৈ ব্যস্ত মই আৰু মোৰ পৰিয়াল ৰাখালদাৰ পৰিয়াল ৰাখালদাৰ পৰিয়াল আছিলে সেই পৰিয়ালটো তেওঁৰ নিজস্ব পৰিয়াল নহয় এই গোটেই ৰেলৱে শ্ৰমিক সম্প্ৰদায় শ্ৰমিক গণজীৱী আজি সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে ৰাখালদাক পাহৰি নাযাব ৰাখালদাৰ আদৰ্শক পাহৰি নাযাব ৰাখালদাৰ কৰ্মৰাজিক পাহৰি নাযাব আৰু সেইটো প্ৰকৃষ্ট হ'ব তাৰ প্ৰমাণ পাম যেতিয়া আপোনালোকে আকৌ ইউনিয়নমুখী হ'ব ইউনিয়নক ধৰি ৰাখক নহ'লে কিন্তু বিপৰ্যয় আহি আছে আজি এই ভাল দিনত মই বেয়া কথাটো ক'লোঁ এইকাৰণে ক্ষমা কৰিব মোক মই অশনি সংকেত দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াহে ৰাখালদাৰ আদৰ্শত আমি উদ্দীপিত হ'ব পাৰিম আৰু ৰাখালদাৰ যিখিনি কাম কৰি গৈছে সেইখিনি কাম আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম তেতিয়াহে ৰাখালদাৰ আত্মা সন্তুষ্ট হ'ব আজি মই পুনৰ আৰু এবাৰ আমাৰ নেতা ৰেলৱে শ্ৰমিকৰ পথভ্ৰষ্টা ৰাখালদাৰ 90তম পূৰ্ণ জন্মতিথিত তেওঁলৈ জনাইছোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাপূৰ্ণ প্ৰণাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ সকলোলৈ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এটা কথা কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ গাই গৈছিলে তোমাৰ পতাকা যাৰে দাও তাৰে বহি বাৰে দাও চকতি মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীৰ নেতৃত্বত যি নেতৃত্ব আগবাঢ়ি আহিছে নতুন নেতৃত্ব তেওঁলোকক ভগৱানে শক্তি দিয়ক আপোনালোকে লগতে সহযোগ কৰক তেতিয়াহে ৰাখালদাৰ যিটো সপোন সেইটো সাৰ্থক হ'ব ধন্যবাদ জয় হিন্দ অজয় দত্ত ডাঙৰীয়ালৈ বহু বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিছে আমাৰ সভাপতি কমৰেড দিলীপ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই এই আবক্ষ মূৰ্তিটোৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন যিগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতৰ পৰশতে এই মূৰ্তিটো গঢ়ি উঠিছে মই দাদুল চলিহা ডাঙৰীয়াক এই মূৰ্তিটো বনোৱাৰ কাৰণ তেখেতে জীৱনত ৰাখালদাক দেখাই পোৱা নাই মাত্ৰ আমি ফটো দিছিলোঁ তেওঁ সেই ফটো চাই তেখেতে এই ৰূপটো দিছে তো তেখেতৰ এই আবক্ষ মূৰ্তিটো বনোৱা আঁৰৰ কাহিনীখিনি তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেখেতৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিবলৈ মই তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ দাদুল চলিহা মই প্ৰথমতে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়ন সমিতিৰ সকলো উদ্যোক্তাসকললৈ আৰু আজি উপস্থিত বৰেণ্য ব্যক্তিসকল আছে মই শিল্প জগতৰ এজন মানুহ জীৱনৰ প্ৰায় 50টা দশক পাৰ হোৱাৰ পিছত
আজিলৈকে মই স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ মাজেৰেই শিল্প চৰ্চাত ব্ৰত হৈ আছোঁ। আচলতে প্ৰতিমূৰ্তিতকৈও মই এজন পেইণ্টাৰ আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পী, স্কাল্পটৰ। আমি যেতিয়া ছবি এখন সৃষ্টি কৰোঁ, ছবিখনত বাহ্যিক ৰূপটোতকৈ অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা ইনৰ যিখিনি ফিলিংছ, সেইখিনিক লৈ আমি ছবি এখনৰ আমাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰতিমূৰ্তি মই বহুত বনাইছোঁ, কিন্তু কিছু ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বই আচলতে প্ৰতিমূৰ্তিটো বনাওঁতে সেই দৃষ্টিভংগীৰেহে প্ৰতিমূৰ্তি এটা তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰোঁ, চেষ্টা কৰোঁ। ক'ৰবাত কেতিয়াবা সফল হওঁ, আৰু জীৱনটোত আমি বিফলতাৰ মাজৰ পৰাই আমাৰ সফলতাখিনি আমি বিচাৰি ল'ব লাগিব। শ্ৰদ্ধাৰ এই ব্যক্তিগৰাকীৰ বনোৱাৰ দায়িত্ব যেতিয়া মোৰ মাজলৈ আহিলে, শ্ৰদ্ধাৰ আজি এই মজদুৰ ইউনিয়ন সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় দিলীপ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই তেখেতে মোক দায়িত্ব দিলে। মই মোলৈ হোৱাটছএপত বহুকেইখন ফটো পঠাইছিলে, আৰু প্ৰতিখন ফটো মই যেতিয়া এটা কাম কৰোঁ, মই খুব সেই ব্যক্তিজনৰ আত্মিকভাৱে তেখেতৰ লগত এটা সম্পৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰোঁ। আৰু মোৰ এইটো এটা খুব দুৰ্ভাগ্য আছিল, মই তেখেতক কোনোদিনেই দেখা নাছিলোঁ। মাথো ফটোখনৰ মাজৰ পৰাই তেখেতক চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে মই কৰিবলৈ। বহুবাৰ মই মাতিছিলোঁ এখেতসকলক চাবলৈ, যেতিয়া মই প্ৰথমতে মাটিৰ পৰ্যায়ত কামটো কৰা হয়, তাৰপিছত ইয়াক ব্ৰঞ্জলৈ কনভাৰ্ট হয়, নহয় বা ফাইবাৰ কাষ্টিঙলৈ কনভাৰ্ট হয়। এইটো আছিলে ফাইবাৰ কাষ্টিঙৰ। কাৰেণ্ট গৈছে নেকি? গতিকে এইটো আছিলে ফাইবাৰ কাষ্টিঙৰ। মাটি পৰ্যায়ত থকাৰ পিছত যেতিয়া ফাইনেল হয়, ফাইনেল হোৱাৰ পিছত আমি ফাইবাৰ কাষ্টিঙলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰায় 3 বা 4 বাৰমান এওঁলোক গৈছিলে, মাননীয় চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াসকল আৰু বহুত নেকিবোৰ আৰু বহুত কেইজন গৈছিলে। তেওঁলোকে হতাশ মনেৰে ঘূৰি আহিছিলে, কৈছিলে নাই হোৱা। তাৰপিছত মই এটা কথাই কৈছিলোঁ যে এজন ব্যক্তি, এজন শিল্পীৰ হাতত সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে এটা পৰিক্ৰমা থাকে। মই ক'ৰবাত হয়তো মানুহজনক পাইছিলোঁ, কিন্তু ক'ৰবাত যিটো প্ৰাণ, এই গোটেই ৰেলৱেৰ মানুহখিনিৰ মাজত তেখেত যিভাৱে সোমাই আছে, সেই ব্যক্তিত্বটো হয়তো মই অনুধাৱন কৰাত মই হতাশ হৈছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু এটা সময়ত এবাৰ যেতিয়া মই নিজেই সন্তুষ্ট হৈছিলোঁ যে অলপ আহিছে নেকি, তেতিয়া তেওঁলোকে গৈ চালে, সেইবাৰ মানে এটা গ্ৰীণ ছিগনেল পালোঁ যে এইবাৰ আহিছে মানুহজন। তাৰপিছত প্ৰায় মোৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো, আবক্ষ মূৰ্তিটো তৈয়াৰ কৰোঁতে মোৰ প্ৰায় 2.5 মাহ লাগিছিলে। কিন্তু কেতিয়াবা কোনোবাজন ব্যক্তি হঠাতে আহি যায়, প্ৰায় 1 সপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰতে সেই ব্যক্তিজন সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পায়। গতিকে আমাৰ এই যাত্ৰাটোত আমি বহুত উজুতিও খাব লগা হয়। কিন্তু মোক এনেকুৱা এজন বৰেণ্য ব্যক্তিৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি বনাবলৈ মই যিখিনি সুযোগ পালোঁ, তাৰ বাবে মই সকলো উদ্যোক্তাসকললৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ চমু ভাষণ সামৰণি মাৰিছোঁ। कुछ तकनीकी कारण की वजह से माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी 2 मिनट में आपका प्रोग्राम फिर से शुरू होगा। ইতিমধ্যে গম পাইছে বিদ্যুতৰ বিজুতিৰ কাৰণে
কিছু সময় আমার ব্যাঘাত জন্মিছে। ইতিমধ্যে पावर हाउस फोन करा है। तो हम लोग का अभी फिलहाल महामंत्री जी का उनका बात सुनना था, लेकिन कारण आने तक हम लोग इंतजार करें, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री जी को बात सुनने के लिए हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक वो आ जाए, ऑलरेडी फ़ोन किया हुआ है, आ जाएगा लाइन, उस समय हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप लोग विश्राम देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ तकनीकी कारण की वजह से हमारे जो है प्रोग्राम स्थगित हुआ है, क्योंकि माइक से चल नहीं रहा है। इसको अभी अनवील कर रहा है। इसी बीच में मैं आपको फिर से एक बार राखाल दास गुप्ता जी का स्टैचू फिर से एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार ये भव्य जो मूर्ति बनाया गया है, इनको मैं कॉमरेड प्रेम साहनी को बोलूँगा कि सही से दिखाएं, बढ़िया से देखें। आप लोग इसका विटनेस कीजिए, आप उसका साक्षी बनिए। इतना भव्य जो एक मूर्ति है हमारे प्रिय नेता कॉमरेड राखाल दास गुप्ता जी का, उनके 90th बर्थ एनिवर्सरी में ये उन्मोचन किया गया है, जिनका उन्मोचन जो है, जिनका उद्घाटन हमारे प्रिय नेता कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने किया है। आप देखिए ये भव्य मूर्ति, मैं इसको पढ़वा के एक बार दिखाना चाहूँगा। प्रेम साहनी को मैं बोलूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। लेजेंडरी लीडर फाइंड्स अ वे, मेक्स अ वे एंड लीड्स द वे। कॉमरेड राखाल दास गुप्ता, a legendary leader who became great not because of his power but because of his ability to empower others. Birth 30 December 1932, death 22 December 2020। अभी मिश्रा जी मंच पे आ चुके हैं। मैं उनका जो है लाइव भाषण जो है स्पीच मैं उनको सुनाऊंगा। हमारा सभापति दिलीप दा, यहाँ का प्रिंसिपल सीपीओ सैकिया साहब, अभी हम लोगों के बीच में हम लोगों का बहुत सीनियर लीडर अजय दत्ता दा भी था, हमारा एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन का महामंत्री आशीष दा, हमारा जोनल सेक्रेटरी फेडरेशन का पीयूष चक्रवर्ती, और आज वास्तव में जिनकी तारीफ करनी चाहिए और जिस मूर्ति का अभी मैंने अनावरण किया, दादा का बिल्कुल प्रतिमूर्ति बनाने वाला हमारा दारुल चालिया जी, आपका बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने बहुत सारी मूर्तियों को देखा है, लेकिन आज दादा को तो खैर वैसे ही हृदय में रहता है, लेकिन आज सामने से देखिए, कॉर्नर से देखिए, उधर जाके देखिए, हर तरफ से एक ही जैसा दिख रहा है। तो ऐसा मूर्ति को रूप देने वाला साथी हम लोगों के बीच में है। हम समझते हैं जोरदार तालियों से आप सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए। हमारा बहुत सारा साथी पदाधिकारी एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन का यहाँ पर है। किसी का नाम लूँगा, भूल जाऊँगा तो नाराज हो जाएगा। और फिर ये तो सम्राट चक्रवर्तियों का राज है। दिलीप दा हेड है, तो मैं समझता हूँ कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। हम अपना सभी बहनों को, भाइयों को आज के इस अवसर पर याद करता है। दादा का जन्मदिन है और जन्मदिन में इससे बड़ा तोहफा नहीं होगा कि जिस व्यक्ति की स्मृति हमेशा दिल में रहती हो,
उसको आपने ये सम्मान दिया यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित करके, तो मैं NF रेलवे मजदूर यूनियन के साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आई पे माई सल्यूट्स टू ऑल द कॉमरेड्स ऑफ द NF रेलवे मजदूर यूनियन। रखालदा मेरे लिए नेता नहीं था, नेता तो था, सबका था, मेरा भी था, लेकिन मेरे लिए वो पिता था। जैसे एक पिता बच्चे को प्रेम करता है, बच्चा गलती करके आ जाए तो उसको डांटता भी है, फिर उसको पुचकारता भी है, तो ऐसा उनका प्रेम था। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हमेशा जो है वो इनकरेज करने वाली बातें करते थे। मुझे कोई एक ऐसा मौका नहीं नजर आता जहां कहीं उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो जिससे कि आप हतोत्साहित हो। हमेशा उत्साह देना, प्रेरणा देना, आगे बढ़ने की सोच देना, ये रखालदा का व्यक्तित्व था। एक रखालदा में एक बहुत बड़ी जो मैंने देखा, मैंने समझा वो कि वो बुजुर्गों में भी खप जाते थे और बच्चों में सबसे ज़्यादा उनका प्रेम था। यंगस्टर्स जो है उनको बहुत लाइक करते थे और वो यंगस्टर्स को भी। और रखालदा से जो मिल लेता था वो यही समझता था कि रखालदा तो सिर्फ मेरे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये समझे कि किसी को उन्होंने बड़ा किया, छोटा किया, नहीं, सबको समान रूप से एक जैसा व्यवहार करते थे। रखालदा वाज इंसाइक्लोपीडिया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तमाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेंबर फाइनेंस, मेंबर स्टाफ जिनके साथ हम लोग निगोशिएट करते थे, वो कहते थे कि रखालदा तो इंसाइक्लोपीडिया है। कई बार तो पीयूष गोयल तो एक बार ऐसा कुछ मामला आया, वो समझते थे कि मैं CA हूँ, हार्वर्ड में यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं ही काबिल हूँ। दादा ने उनकी बोलती बंद कर दी और उनको खड़े होकर उनको प्रणाम करना पड़ा। कहा दादा मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूँ, लेकिन आप जैसा टीचर मुझे नहीं मिला, आज ही मिला, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उनका मेमोरी इतना शार्प था। फिर दूसरा ये है कि हमारे जैसे लोगों में और दादा में बड़ा अंतर, मैं तो कभी इस बात को भूल ही नहीं सकता। हम कभी कागज लेकर के निगोशिएशन नहीं करते, हम कभी कोई चीज पढ़ करके बात नहीं करते। और दादा को मैं देखता था कि रात भर बैठ करके अपना हिसाब लगा रहा है, पुरानी किताबें खोज रहा है, ये ईयर बुक ले आओ, वो ले आओ, फलाना है, लिखाना है। मैं उनसे कहता भी था दादा आज के ज़माने में ना वो पढ़े लिखे ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, इनको तो हम अपने तरीके से ठीक कर लेते हैं। वो कहते थे नहीं बेटा, वो बात अपनी जगह है, लेकिन जब अपने पास कुछ रहेगा तो हम इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो बात सही है। जब वो पे कमीशन के सामने जाते थे या कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई डिस्कशन होता था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में, जब वो तैयार होकर के जाते थे तो तमाम लोग, खाली हमारे फेडरेशन के लोग नहीं, दूसरे फेडरेशन के लोग जो है वो उनको ध्यान दे करके सुनते थे। और जो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है वो तो अवाक रह जाता था कि मैं इतना सब कुछ पढ़ करके आया हूँ, इतना सीनियर IAS अफसर हूँ, और मैं जो हूँ वो दादा को जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे पास पूरी फौज है, SSO से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के एडिशनल सेक्रेटरी तक, और ये वन मैन आर्मी है, और ये इतनी तैयारी के साथ आया कि हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो दादा वाज ए इंस्टीट्यूशन, ही वॉज नॉट ए इंडिविजुअल, ही वॉज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ही वॉज ए इंस्टीट्यूशन। हम लोगों ने उनके चरणों में बैठ करके जो सीखा है और जिन लोगों ने भी उनके सानिध्य में काम किया है, अगर उनकी भावनाओं को समझें, अगर
जो वो करते थे उनके कृतित्व में विश्वास रखें। तो मैं समझता हूं कि संगठन को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है, बहुत ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। कई बार संगठन में झगड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं होते, लेकिन उन झगड़ों को सुलझाने के लिए जो झगड़े चौबे जो पुरोहित जी से नहीं सुलझते थे उनके लिए रखालदास को भेजा जाता था कि आप जाओ, सदर्न रेलवे में झगड़ा है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में झगड़ा है, वहां सुलझा करके आओ। साउथ सेंट्रल रेलवे में झगड़ा है, जा करके कुछ ठीक ठाक करके आओ। तो ऐसा उसी आदमी को कहा जा सकता है जिसके दिल और दिमाग में सिर्फ संगठन होता है, व्यक्ति नहीं होता। उस व्यक्ति ने कभी भी ग्रुपबाजी नहीं करी। उन्हें यूनियन को, संगठन को बढ़ते हुए देखना उनको पसंद नहीं था। एक ही बात थी कि सब लोग मिलजुल करके आपस में प्रेम से रहे, संगठन को आगे बढ़ाए। और दूसरी बात ये कि हम जिन सवालों को सरकार के सामने रखेंगे पहले उनके बारे में खूब विचार कर लिया जाए, ठोक के, हवा में बात नहीं की जाए। लेकिन अगर विचार बन जाए तो फिर उसके लिए किसी भी दूर तक जाने की मंशा उनके अंदर हमेशा रहती थी। वो निर्भीक व्यक्ति थे, कभी डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। कई बार मुझे बहुत डांट पड़ती थी पुरोहित जी से या चौबे जी से, तो वो हमको डिफेंड करते थे, मेरे पीछे ढाल की तरह खड़े हो जाते थे। कहते थे कि अगर ये अभी लड़ने की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। चूंकि मैं कह देता था कि ऐसा नहीं मानेगी सरकार, तब फैसला करिए, फैसला करने का वक्त आ गया है। तो ये जो परिस्थितियां हम लोगों के सामने रहती थी, उन पर जो है वो मैंने दादा के कृतित्व को समझा है, उनके साथ रह करके मैंने उनको समझा है। कई बार बहुत विपरीत परिस्थिति भी होती थी, लेकिन दादा का प्रेम जो है वो ऐसा था कि हम लोगों को फिर जो है वो निकाल करके ऊपर ले आता था। शायद ही कभी कोई ऐसा मौका रहा हो जब दादा मिला हो, हमने उनको पैर छू के प्रणाम किया हो और उन्होंने ये ना पूछा हो कि शिवा घर में सब कैसा है, वाजपेयी जी के घर में कैसा है सब। जिनको वो जानते थे सबके बारे में पूछते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे लगता है कि व्यक्ति परिवार का मुखिया है, सबके बारे में जानना चाहता है। तो आज जब आशीष ने कहा कि आपके सामने दो विकल्प हैं, वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों विकल्प चुन सकता था। मेरे को कोई मना नहीं कर सकता रखालदा के नाम पर या संगठन के किसी नाम पर। ना मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ नहीं जाऊँ। लेकिन जब इन्होंने कहा, चूँकि इस महीने में पता नहीं क्या है कि हर आदमी इसी महीने में अपनी एजीएम करना चाहता है, दिसंबर में। अब की बार मैंने लोगों से कहा है कि भाई नवंबर के महीने तक सारी भी एजीएम कर लो अपनी, क्योंकि सारे लोग दिसंबर में एजीएम करते हैं। एक की मदुरई में होती है और दूसरे की जो है वो पता चलता है कि वहाँ दाहोद में हो रही है। आज इनका नाम भी लिखा हुआ है दाहोद के शहीदों का। यहाँ पर जब आपने झंडा फहराया और शहीदों को यहाँ पर जो है वो अजयदार श्रद्धांजलि दे रहे थे, मैं खड़ा होकर के ही पढ़ रहा था कि आपने सिर्फ मरियानी के लोगों को ही नहीं याद किया है, आपने सिर्फ न्यू बोगई गांव के शहीदों को ही नहीं याद किया है, आपने किया है, आपने किया है। आपने यहाँ के शहीदों को भी याद किया है, तो आपने पठानकोट के शहीदों को भी याद किया है, आपने दाहोद के शहीदों को भी याद किया है, आपने 74 के भी शहीदों को याद किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
यही संघर्ष में विश्वास रखने वाले लोगों की निशानी है। और इसीलिए मैं NF रेलवे मजदूर यूनियन को हमेशा सलाम करता हूं, आपकी सोच को सलाम करता हूं। दादा आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं। जब भी कभी कोई कठिन सवाल खड़े होते हैं तो दादा हमारे सामने होते हैं, और दिमाग में आता है दादा होता तो क्या करता, तो उसी समय सारी मुश्किलें हल होना शुरू हो जाती, ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाते हैं, सवालों के जवाब अपने आप आने लगते हैं। पता नहीं क्या था, विलक्षण प्रतिभा थी, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन आज उनकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फौज छोड़ करके गया है हम लोगों के बीच में। उन्हीं के दिखाए रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं। अभी तक रेल को बचा करके रखा है। मुझे पूरी आशा है कि दादा को अगर हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके जन्मदिन को, उनकी पुण्यतिथि को याद करना चाहते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अगर हम लोग रेल बचा सकें और इसी स्वरूप में रख सकें जिस स्वरूप में उन्होंने छोड़ी थी। यही हमारे लोगों के लिए बेहतर संकल्प होगा। मांगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आज नहीं तो कल ले ही लेंगे। सरकार रहेगी, हम लोग रहेंगे, तो मांगों की परवाह नहीं है। इस साल हम लोगों ने संकल्प लिया है, पुरी में लिया है ना, सबके सामने लिया है, जगन्नाथ जी के सामने लिया है, प्रण करके आए हैं। क्या करके आए हैं मालूम तो हो? क्या संकल्प लिया है पुरी में हम लोगों ने, हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे, याद है ना? तो तैयारी उसी तरीके की हो जानी चाहिए, अभी से तैयारी शुरू होनी चाहिए। ऐसा माहौल बन जाना चाहिए कि अगर पुरानी पेंशन बहाल होगी तभी कुछ रुकने वाला है। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो ये सरकार लौट करके सत्ता में नहीं आएगी, ये प्रण हमको लेना है। और ये तभी संभव है जब हमारे लोग रेलवे की कॉलोनियां छोड़ें, अपने घरों से बाहर आएं, तमाम गांव देहात मोहल्ला हर जगह इस बात के लिए लोगों के पास जाएं कि ये सरकार सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट सकती है। जो मूल सवाल है आपके, पढ़ाई, दवाई, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, इसकी चिंता इस सरकार को नहीं है। और इसके लिए जब आप झकझोड़ेंगे लोगों को, नौजवान साथियों को, छात्रों को, शिक्षकों के साथ जोड़ेंगे, राज्य कर्मचारियों के साथ जोड़ेंगे, दूसरे जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो किसी भी मजदूरों के हों, किसानों के हों, उनको साथ लेकर के एक साथ जोड़ेंगे, तभी हम लोग जो है वो अपना जो संकल्प है उसको पूरा करने में कामयाब होंगे। हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन अजय दा हम लोगों के बीच में हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं इस दिशा में, लेकिन उनकी कोशिशें और आपकी कोशिशों में बहुत फर्क होगा। मैं आपको बताऊं, वो हर साल 2-1 दिन की हड़ताल करते हैं और दुनिया में जाएं या न जाएं, लेकिन असम में हमारे साथी उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं, जेल भी चले जाते हैं। यहाँ पर आप पूरी ताकत से उसको निभाने का काम करते हैं, लेकिन जब आप भारत बंद का निर्णय लेंगे तो सरकार हिलेगी। क्यों? इसलिए कि तब रेल भी बंद होगी, और रेल बंद होना एक विप्लव है। असम का नेता भले ही विप्लव हो, त्रिपुरा में जो मर्जी होता हो, लेकिन जहाँ जहाँ आप हैं, आप स्वयं में एक विप्लव हैं। और मुझे आशा है कि आप उसको आने वाले समय में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज जब हम उनके जन्मदिन पर रखालदा के उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए हैं, उनको याद करने के लिए हैं, तो जो संकल्प हमने किया है, हम समझते हैं कि अगर उसको हम सही तरीके से पूरा कर सके तो यही उनको याद करने का सबसे अच्छा
तरीका होगा और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी। अभी आप लोग को मालूम है इलेक्ट्रिसिटी फिर से रन होने में करीबन 3 बज जाएगा और हम लोग का सभा भी छोटा करना है अभी। तो अभी जो व्यक्ति को मैं बुलाना चाहता हूँ उनके लिए एक्चुअली माइक ज़रूरत नहीं है, उनका अपना आवाज़ ही काफ़ी है और उनको अपना भाषण के साथ वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए एनएफएलए मजदूर यूनियन के महामंत्री कॉमरेड आशीष विश्वास जी को मैं अनुरोध करता हूँ। आदरणीय सभापति जी, हमारा सीपू साहब, स्वीकर साहब, मिश्रा जी, अजयदा और चलिया जी, दिन हमारा साथी पीयूष भैया, साथी ये मीटिंग का आई एम द लास्ट स्पीकर, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, ये मीटिंग का बाद ही हम वर्किंग कमेटी में जाएंगे और वर्किंग कमेटी में उधर ही खाना होगा, वर्किंग कमेटी इंस्टीट्यूट में होगा, क्योंकि बहुत साथी जाने वाला है। बट हमने एक सब्जेक्ट पर इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, दैट इज चैलेंजेस बिफोर अस, दैट इज वाई हमने सीरियसली उसको डिस्कशन करेंगे ये मीटिंग के बाद। सदी रखलदा के बारे में जो बताएंगे, तो रखलदा को हमारा डीआर किया था रखलदा, एट दैट टाइम रखलदा वाज ए सीनियर क्लर्क और उसी डिपार्टमेंट में हम करता रहा, नीचे में एज ए कैजुअल लेबर, 2 रुपये हाजिरा, सेकेंड पे कमीशन, और हमने सेकेंड पे कमीशन में फर्स्ट लड़ाई हुआ 1968 में, इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। उस लड़ाई में रखलदा को देखा संघर्ष करने में और वो हमको इतना प्रेरित किया उसी टाइम में, और फ्रॉम दैट डे इसका साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, ये प्रोफेशनल देख रहा है अब पहले नंबर, ये हमारा साथ कैजुअल लेबर था, बोथ हम लोग एक जैसे कैजुअल लेबर का काम करता, वो कैजुअल लेबर में ही गोली से देहांत होने का काम हुआ, प्रोफेशनल उसी टाइप में। हमने रखलदा को बहुत सा चीज देखा, ही ऑल्सो ए वेरी डिप्लोमेट। हम इतना बात तो नहीं बताएंगे, वो लोग बता दिया, एक बता रहा हूं, एक छोटा कहानी, आपको मालूम होता है किसे डिप्लोमेट है। रखलदा एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खूब संबंध था, दैट इज कॉल्ड पीएसपी, पोजा सोशलिस्ट पार्टी, और बोंगाईगांव में चुन करके 2 आदमी था, डॉक्टर सीएम दास, ही इज ए डॉक्टरेट, वो था फिलोसफी का, भवानीपुर में बारी है, वो था प्रेसिडेंट, और एक से आदमी था सेक्रेटरी, दोनों, ज्यादा आदमी उसका फॉरवर्ड नहीं था। तो एक बार इतना बरसात हुआ, पानी हुआ, फ्लड हो गया है, तो जीएमपी से ऑर्डर गया, ये फ्लड एडवांस दिया जाएगा उसी को, लोकल सेल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा इफेक्टेड पीपल को, जो इफेक्टेड हुआ उसको आपको देना है। और उसी टाइम में तो कांग्रेस सारा आदमी मंडल कांग्रेस का बात जा करके सारा एक आदमी के पास 5 रुपए, उस जमाना में 5 रुपए लेकर के एक सर्टिफिकेट देता, ये फलना इज इफेक्टेड, ऐसा करके दे रहा। तो रखलदा उसी ऑफिस में, डीई ऑफिस का ही क्लर्क था, तो रखलदा को डीई पूछा, और रखलदा को डीई पूछा, ये रखल बाबू बोले कि एप्लीकेशन तो सब गिर गया है, लेकिन ये 4-5 एप्लीकेशन गिरा है, ये पार्टी आपको मालूम है? रखल बोला हाँ सर, पीएसपी है, पूजा सोशलिस्ट पार्टी, इसको भी 2-3 एमपी है, ये भी नेशनलिस्ट पार्टी है, बोलो ये अलाउ होगा क्या? तो रखलदा बोलता है कोई अलाउ नहीं होगा, ऑर्डर इज द गवर्नमेंट इज लोकल सेल गवर्नमेंट मतलब म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन, पंचायत का चेयरमैन, पंचायत का अधिकारी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा। तो सारा आदमी हुआ सबका, उस जमाना में 1,500-2,000 आदमी कांग्रेस से लिया था ये लोग का। बाई दिस टाइम
बोंगाईगांव टाउन कमेटी का चेयरमैन था उस टाइम में, ही इज ए वेरी क्लोज टू अस। इसने सिग्नेचर करके लगभग 3,000 फॉर्म हमको दे दिया था और बोल दिया था ये हमारा एक स्कूल बनाएगा, उसलिए थोड़ा डोनेशन तुम लोग अदा कर देना। तो हम लोग रखा था 1 रुपया, 1 रुपया करके जो देगा उसको ऑफिस से सर्टिफिकेट देगा। तो उसको तो 5 रुपया गया। उस जमाने में 5 रुपया सोच लीजिए, एक कैजुअल लेबर का होल डे का था 2 रुपया। तो सारा साथी साला गाली देने शुरू किया, ये साला कांग्रेस का सर्टिफिकेट दिया, ये चला नहीं, सारा आ गया इधर। आई एम टॉकिंग डिप्लोमेसी ऑफ द रखलदा, कितना सोच था ये कैसे उसको सारा को कैंसिल करा दिया, सारा आदमी को अपना तरफ ले आने का काम किया। यह है रखलदा। रखलदा का सवाय हम देखा मिस्टर रघुवीर दयाल, जस्टिस रघुवीर दयाल वॉज द चेयरमैन ऑफ द 3rd पे कमीशन। उसको सामने जो मेमोरेंडम बनाना था, मेमोरेंडम बनाने का टाइम में की एंड कॉर्नर सारा आदमी को, एक दिन में मीटिंग हो रहा था, उसी लेकर के ये हम क्या प्लेस करेगा, टैकमैन के क्या तुमको उस टाइम में गैंगमैन का था। तो खाना दे रहा था एक आदमी, खाना दे रहा था, बोला रखलदा खाना मैंने टाइम हो गया है। तो वो आकर के मैं नासिरुद्दीन नासिर आके खाना दे रहा है। तो रखलदा सोच रहा है कुछ, बोला ऐसे रखलदा आपको इतना सोचना नहीं है, ये हम खाना नहीं बनाया। बोले तू खाना नहीं बनाया मतलब, हम मुसलमान है ना, इसीलिए हम खाना अलग से आदमी से बनाया। बोले किस आदमी से बनाया? बोले गोनी ने बनाया, वो भी मुसलमान है गोनी। मैंने ये जो जोकिंग, मैंने इतना बड़ा लीडर का साथ एक जो माने गैंगमैन है ही रखलदा का साथ, वो ऐसा कितना इजी अप्रोचेबल आदमी होने से वो ऐसा बोल सकता है, वो बोल सकता है। रखलदा का सामने 74 स्ट्राइक में 20 दिन में 16 दिन हम था, 4 दिन रखलदा हमको जा करके भैरवेरी, जिसको आज में बोलता है क्या नाम है, बोंगाईगांव रिफाइनरी, उधर हमको जा करके छोड़ दिया है। बोले आशीष तुम इधर से भाग जाओ, हमारा नाम में 3-4 केस था, वारंट था, बोले तुम इधर से भाग जाओ। रखलदा का टाइम में रखलदा का अधिकारी, सारा अधिकारी बेईमान नहीं होता है, अधिकारी का गाड़ी में एम्बुलेंस में रखलदा का सुलह करके बोंगाईगांव से न्यू बोंगाईगांव मीटिंग किया। बोंगाईगांव से ये मैं उस दिन भी बता था, रखलदा का अधिकारी NK रॉय डीएमओ था उस जमाने में। डीएमओ मतलब बहुत बड़ा अधिकारी है। तो ऐसा करके रखलदा कैंपिंग किया था, रखलदा के साथ हम भी बाहर जा करके कैंपिंग किया था। उसको बहुत सा अच्छा थी, बहुत सा उसका लाइफ में बहुत सा, आई थिंक आई एम द मैन जो ज़्यादा टाइम रखलदा का टाइम में गुजारने का काम किया, उसको सारा साइड देखने का काम किया। तो इसी रखलदा का आदर्श में हम बता रहा हूँ, फिर दोबारा यू टर्न मजदूर यूनियन को स्थिति नहीं है। नाउ ए डे दिस इज द फर्स्ट टाइम 35 ऑफिस वेयर आउट ऑफ दैट करीब 25 यंग लड़का आया है जो जमा करके काम कर रहा है, जमा करके काम कर रहा है। और विद इन 1 ईयर 5000 मेंबर इंक्रीज हुआ। रखलदा का आदर्श के सामने रख दिए, रखलदा का सिकनेस, देश में कोविड, ये सारा लेकर के संगठन थोड़ा पीछे हट गया था। वो फिर अबारा जैसे जोर कदम से आगे बढ़ रहा है। आई बिलीव रखलदा का जो सपना है वो सपना को आगे ले जाएंगे और मजदूर यूनियन का संगठन करेंगे। अगले दिन का लड़ाई के लिए मजदूर यूनियन तो रहूंगा। आई नीड ए ब्लेसिंग ऑफ द रखलदा फ्रॉम दैट प्लेस। थैंक यू, थैंक यू। और सब साथी जो आदमी इधर हमारा आकर के भाषण देने का काम किया, अजय दत्तो आपका ये शैकिया सर, जितना साथी आया है, और इसको बैकग्राउंड में जो लोग काम किया है, मालीगांव बेंच का साथी जो इधर दिन नहीं रात नहीं बैठ करके काम किया है, इस मंच बनाने में काम किया है। हमारा रखलदा का मूर्ति आप देखिए, हट से एक नजर से, फट से कोई देखेगा बोले दूर से देखेगा बोला नहीं यही तो रखलदा है। तो ये जो आर्टिस्ट बनाने का काम किया, आई थैंक्स टू। सो चलिए जी वो नहीं है हमारा साथ,
आज का दिन में मूर्ति, अभी देखिएगा दिल्ली में जो ये का मूर्ति है, क्या नाम है हमारा, चौबे जी का, साइड से देखिएगा तो मालूम होता है चौबे जी, सामने जाइएगा तो मालूम नहीं होता है चौबे जी। तो कई आज इधर से देखिए फॉन्ट से ही मालूम होता है ये रखल्ला है। तो आई मस्ट थैंक्स जो बनाने का काम किया, हमारा महिला लोग, हमारा साथी, आई फील प्राउड। पहले बार हम आम आदमी है ना, आम आदमी का जो कल्चर टूप्स है उसका रिलेटिव आपको लाता है ये कटिहार में मिस्टर गुप्ता, वो मर गया है बेचारा, वो जो गाना बनाता रहा, ठीक है, वो मर गया है, गुप्ता जी का भाई था। तो उसको देख करके इलेक्शन का टाइम में हम लोग बना करके ले आता रहा पटना में। और इस बार में हमारा साथी, हम सोचा नहीं था ये गाना बनाने का काम किया। पंकज किधर है मुझे मालूम नहीं है, पंकज कोलिता ये बनाने का काम किया। और हमारा बहन लोग जैसे गाना प्लेस करने का काम किया। तो कभी कभी आई फील प्राउड, ये इन हाउस आउटपुट इतना है, हमारा घर में इतना चीज है, ये सारा आदमी एक साथ चले, सारा एक साथ कहे तो कौन बोला है ये मजदूर यूनियन आगे नहीं बढ़ेंगे। मजदूर यूनियन वुड बी द फर्स्ट इन द इंडियन रेलवे, आई एम टेल यू। जैसा 97 में हमारा 1 नंबर में आया था, 97 में, फिर पिछले साल में नहीं हुआ, इस बार में हम आशा करता है इलेक्शन में भी हम, हमारा साथी लोग का सहयोग, सहानुभूति, संगामी भाव। आपको मालूम है एक एक दफ्तर हटा दिया था, कोई ये नहीं आया। गुवाहाटी में डीपी ऑफिस, एडीआरएम को पोस्टिंग दे दिया, गुवाहाटी में आपको ये हटा दिया, क्या नाम है, डी टैक टीआरडी ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। एनएफएल मजदूर ने सबको उसी जगह में रखने का काम किया। एनएफएल मजदूर ने ऑफिस को रखने का काम किया, एडीआरएम को रखने का काम किया, और दफ्तर में रखने का काम किया। कुछ कुछ को जगह में कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ता है। एवरीथिंग अधिकारी को गाल देने से नहीं होगा, दिस इज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो पॉलिसी गवर्नमेंट का जो है अधिकारी लोग बनता है। बट इसका ऊपर भी हमारा इधर ये है, क्या नाम है, सोइकिया साहब है, क्या बताओ, जिस दिन आदमी लोग का सर्विस लेने आया है उस दिन सीनियर डीपीओ लमनिंग को इतना झाड़ने का काम किया कि तुम, आई एम दी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बेंच, हमको जानकारी नहीं है तुम कैसे ले जा रहा है, कौन को परमिशन दिया है। आई थैंक्स, ओ इधर है उधर फोन से। तो आज ऑफिस है, आज ऑफिस है, तो इसीलिए सारा अधिकारी ऐसा है, ऐसा नहीं। उसका पिताजी हम लोग का साथ थे, उसने उस जगह में काम करने का बाद ही ऐसा जगह में काम करता है, एक तरफ गवर्नमेंट, एक तरफ उसका अकाउंटेबिलिटी, दूसरा तरफ हम लोग जो उसका साथ है। तो दोनों के एक साथ बैलेंस करके देखना ये कोई इजी बात नहीं है, वो कर रहा है। हम चाहता है साल अच्छा रहे, हमारा साथ दे, हम आंदोलन का आगे बढ़ाए और अगले दिन का हमारा मांग ले, फिर दोबारा जय रखल्ला का देता है। और सारा साथी जो कंट्रीब्यूट किया है सबको दोबारा धन्यवाद देने चाहता है। किसी को नाम अगर खो गया है तो माफ कर दीजिए, आई नीड योर हेल्प। जैसा हेल्प मिला अगले दिन में भी ऐसा हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड आशीष विश्वास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का यहाँ बोला, पहले ही बोल दिया हूँ आपको, इलेक्ट्रिसिटी के कारण यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं हम लोग का यहाँ का मीटिंग। अभी दादा में इतना करंट है कि करंट की जरूरत ही। थैंक यू। अभी हम लोग का जो वर्किंग कमेटी मीटिंग होगा हम लोग का बगल में ही रिक्रिएशन हॉल में उसमें होगा, और उसमें ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी ने बता दिया, आप लोग का लंच का भी उधर ही प्रबंध किया हुआ है। तो हम लोग का आज का ये फर्स्ट हाफ का ये स्मृति सारण सभा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज का जो ये जो सभा है, आज का ये लाइव मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ अभी हमारा वर्किंग कमेटी मीटिंग शुरू होगा। बगल में हम लोग का रिक्रिएशन हॉल है। आपको फिर से एक बार अभी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप लोग इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, NFRL मजदूर यूनियन जिंदाबाद। एक बार और राखाल दास गुप्ता जी का मूर्ति एक बार मैं कॉमरेड कमल जी को मैं बोलना चाहूँगा, एक बार फिर से वो दिखाएं। ये देखिए जीता जागता मूर्ति हमारे प्रिय नेता राखाल दास गुप्ता जी का जीता जागता जो स्टैचू है, जिसको आज अनवेल किया गया है हमारे प्रिय नेता कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने, ऑल इंडिया रेलवे वुमेन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने आज इनका जो है उन्मोचन किया है। मैं आज का लाइव ये राखाल दास गुप्ता स्टैचू के सामने ही मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉमरेड राजीव कौर आप लोगों से विदा लेते हुए इनकलाब जिंदाबाद, NFRL मजदूर यूनियन जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।